all the MSc students, very warm welcome all of you. Myself, Dr. Suman Sharma. I think you are safe and secure at your home. Students, you are learning the reductions of various functional groups in my subsequent video lectures. In this series, today I will teach you how to reduction of nitroso and azo compounds performs. You are very much familiar with the nitroso compounds. So let us start first with certain elementary knowledge about nitroso groups. Then we will come how the reduction of nitroso and azo compounds performs. Okay, now we start today's lecture. What are nitroso compounds? Nitroso compound, any of a class of organic compounds having molecular structures in which the nitroso group N double bond O is attached to a carbon or nitrogen atom, right? Substances in which this group is attached to an oxygen atom are called nitrites. That is esters of nitrous acids, right? Those in which the nitroso group is attached to a metal ion are called nitrosiles, right? Here is the structural formula of nitroso moiety, right? Come to the next slide. Nitroso compounds are usually prepared by the action of nitrous acid or a derivative of it upon a substance containing an easily replaced hydrogen atom, right? Certain members of the class are obtainable by oxidation of amines or by reduction of nitro compounds. Examples of nitroso compounds are nitroso dimethyl aniline and the nitroso phenols, right? These are the example of nitroso compounds used in the manufacture of dyes, and these two compounds are used for the manufacture of dyes. The compounds are usually blue or green in color. They are blue and green in color, right? Nitroso derivatives of amides decompose upon heating with formation of nitrogen and can be used as foam producing agents. Okay, if they are heated in the presence of alkalis, the decomposition takes a different course yielding diazo compound, right? फिर आता है, ये तो अभी हमने थोड़ा सा जो है वो एलिमेंट्री आइडिया लिया है कि नाइट्रोसो ग्रुप क्या होता है, नाइट्रोसो कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनकी रिएक्शंस क्या होती है और उससे हमको जो है किस तरह की डाइज मिलती है, राइट? अब आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोसो कंपाउंड्स. लाइक नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रोसो ग्रुप्स आर रेडियली रिड्यूस टू द करस्पॉन्डिंग एमीन्स, राइट? जैसे कि नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन पर हमको एमीन्स मिलती थी, यहाँ पर भी जो है जब नाइट्रोसो कंपाउंड्स का रिडक्शन किया जाता है तो फाइनली जो प्रोडक्ट है वो अमीन होता है. दिस कैन बी इफेक्टेड बाय विग्रस रिएजेंट्स सच एज जिंक एसिड और टिन HCl, राइट? ये जो रिएक्शन है वो जो है किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, जिंक और HCl की प्रेजेंस में या टिन और HCl की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन प्रोसीड होती है. बट मोर ऑफन द रिएक्शन इज कैरिड आउट विद अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, स्पेशली सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, राइट?
sodium hydrosulfide not only aromatic but also aliphatic nitroso groups are reduced to amine, right? यदि हम जो है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड जो है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि केवल एरोमेटिक ही नहीं, एलिफेटिक जो नाइट्रोसो ग्रुप्स हैं वो भी एमीन के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं, राइट? हियर इज़ द रिएक्शन, दीज आर द रिएक्शन। ये है आपका पैरा नाइट्रोसो टॉल्विन। जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है जिंक और HCl की प्रेजेंस में या रिडक्शन करवाया जाता है तो दिस ग्रुप इज रिड्यूस इनटू NH2 ग्रुप, राइट? और वी गेट प्राइमरी अमीन। इट्स ये क्या हो गया आपका पैरा एमिनो टॉल्विन, राइट? फिर यहाँ पर जो है हमने ये दूसरा जो है रिएक्टेंट काम में लिया है, इट्स अ पैरा नाइट्रोसो डाई मिथाइल एनिलीन। जब इसका रिडक्शन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ टिन एंड HCl तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दिस नाइट्रोसो ग्रुप इज रिड्यूस्ड इनटू एमिनो ग्रुप, राइट? तो ये हमको प्रोडक्ट मिलता है। और भी फर्दर रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पर। यदि हम ONA, राइट, इसको यदि हम यहाँ पर रिएक्टेंट काम में लेते हैं और इस रिएक्शन को हम सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ करवाए जाते हैं एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो भी ये दिस NO ग्रुप इज रिड्यूस इनटू NH2 ग्रुप, राइट? और फर्दर रिएक्शन भी हम देख सकते हैं। ये क्या है, कोई एलिफेटिक नाइट्रोसो कंपाउंड है। जब इसका रिडक्शन हम जिंक और ACOH की प्रेजेंस में करवाते हैं और इसको जब रिफ्लक्स किया जाता है, ठीक है, तो भी यहाँ पर हम देखते हैं ये जो NO2 ग्रुप है, ये जो NO नाइट्रोसो जो ग्रुप है वो NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, राइट? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एन नाइट्रोसो ग्रुप prepared from alkyl amines and nitrous acids are reduced to unsymmetrical hydrogens by zinc and acetic acid, but more vigorous reagents such as stannous chloride give cleavage to the amine with aromatic amines, right? ये यहाँ पर हमने रिएक्शन दे रखी है। फर्स्ट जो रिएक्शन है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एल्काइल अमीन और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होकर यहाँ पर नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है। ये जो नाइट्रोसो कंपाउंड है इसका रिडक्शन अनसिमेट्रिकल जो है वो हाइड्रोजीन के अंदर, यहाँ पर हम यदि जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो N डाई मिथाइल हाइड्रोजीन बनता है, राइट? कहने का मतलब ये दिस NO इज कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप, राइट? सेकेंड जो रिएक्शन है उसके अंदर भी जो है हम देखते हैं कि ये क्या है आपका, ये है आपका एरोमेटिक जो है वो एमीन है। जब इसकी जो रिएक्शन हम करवाते हैं HNO2 यानी नाइट्रस एसिड के साथ में तो ये जो है वो नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है। फिर इसकी फर्दर जब रिडक्शन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिटिक एसिड एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमको यहाँ पर N फिनाइल N मिथाइल हाइड्रोजीन मिलता है। दिस NO2 इज कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप, राइट? ये यहाँ पर हमने और भी जो है एग्जाम्पल देकर इसको शो कर रखा है। ये जो है आपका एरोमेटिक नाइट्रोसो कंपाउंड है। जब इसका रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड HCl और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है तो भी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दिस जो है ये यहाँ पर NH3 ग्रुप तो अमोनिया तो निकल जाती है और यहाँ पर जो है NHCH3 ग्रुप आ जाता है, राइट? यानी कहने का मतलब ये जो रिएक्शन है यहाँ पर क्लीवेज टू द एमीन और विद एरोमेटिक एमीन जो है उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर और भी यहाँ पर जो है हमने जो है एग्जाम्पल दे रखे हैं। इट्स अ एरोमेटिक नाइट्रोसो कंपाउंड। ये जो है टिन और HCl के साथ में जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर
ये जो है सेकेंडरी अमीन बनती है और अमोनिया अलग हो जाती है, राइट। तो ये क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोसो कंपाउंड्स, राइट। अब हम देखते हैं कि सेकेंड टाइप ऑफ जो है कंपाउंड दैट्स दे आर एजो कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो अब एजो कंपाउंड्स का जब हम रिडक्शन पढ़ते हैं तो उससे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि एजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। एजो कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स बियरिंग द फंक्शनल ग्रुप डाई एजिनाइल R and double bond N R dash, right, in which R and R dash can be either aryl or alkyl. Here is the general chemical formula of azo compounds. यहाँ पर R और R dash कुछ भी हो सकता है, या तो ये अल्काइल ग्रुप हो सकता है या एराइल ग्रुप हो सकता है, राइट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर आता है एजो कंपाउंड्स, any organic chemical compound in which the azo group, this is azo group, is part of the molecular structure, right. The aromatic groups attached to the nitrogen atoms may be of any organic class, but the commercially important azo compounds, those that make up more than half the commercial dyes, have the benzene group or its derivative as the attached groups aromatic azo compounds, right. So here is the some brief idea about the azo compounds, right. Most aromatic azo compounds are prepared by the reaction of diazonium salt with an organic substance that contains easily replaced hydrogen atoms, right. The synthesis of azobenzene from nitrobenzene by treatment with certain oxygen removing reagents in an example of an alternate method useful for symmetrical azo compounds. These are the method of preparation of azo compounds, right. Azo compounds in which the attached group are aliphatic organic groups are usually made by dehydrogenation of the corresponding hydrazo compounds containing the group NH made from hydrazine N2H4, right. An important reaction of the aliphatic azo compound is their decomposition by heat into nitrogen and free radicals. The latter often are used to initiate polymerization reaction, right. तो ये हमने थोड़ा सा जो है आपने डाईएजोनियम जो कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मेशन और उसकी क्या क्या रिएक्शंस जो हैं वो होती हैं इसको डिस्कस कर लिया है। वैसे ही जो है ये हम जो है अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के अंदर सब पढ़ चुके हैं, राइट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है रिडक्शन ऑफ एजो कंपाउंड्स। अनसिमेट्रिकल एरोमेटिक एजो कंपाउंड्स result from the coupling of diazonium salt with phenols or tertiary aromatic amines, right. Symmetrical azo derivatives can be prepared from controlled reduction of nitro compounds. Azo compounds behave like nitroso compounds in that they can be reduced to primary amines under relatively mild conditions, for example with sodium hydrosulfide, right. जो एजो कंपाउंड्स हैं उनका जो रिडक्शन प्रोसेस है वो सिमिलर होता है जैसा कि नाइट्रोसो कंपाउंड्स के अंदर होता है। बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो एमीन ही होता है। ये जो है हमने यहाँ पर इसको रिएक्शन दे करके शो कर रखा है। और ये जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? इट्स अ एरोमेटिक एजो कंपाउंड। इसका जब रिडक्शन Na2H2O4 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एमीन का फॉर्मेशन, प्राइमरी एमीन्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। और सेकेंड जो रिएक्शन है उसके अंदर हम देखते हैं अंडर वेरी कंट्रोल्ड कंडीशन एजो कंपाउंड्स कैन बी रिड्यूस टू हाइड्रेजो कंपाउंड्स, ठीक है ना। यदि हम
किसी भी जो है ना कंट्रोल कंडीशन के अंदर इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं एजो कंपाउंड्स की, लाइक सोडियम, NaOH और मीथेनॉल के साथ में जब इसको रिएक्शन को किया जाता है तो बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो हाइड्रेजो कंपाउंड बनता है। तो इस जो है यहाँ पर हमको रिएक्शन जो कंडीशन है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, राइट। तो ये जो है वो हमने आज रिडक्शन ऑफ एजो कंपाउंड और रिडक्शन ऑफ नाइट्रोसो कंपाउंड के बारे में पढ़ा है, राइट। Thanks dear students.